We will start a summary of the first chapter recording with the PDF notes. So do not take much time. So let's go start. Okay, we know that chemical change. What are chemical chains? It is the chains in which one or more new substances are formed. In which chemical changes are observed for parameter. First is new substance are always formed. Second is energy changes are evolved. Third is there is changes in mass during the reactions. And fourth is permanent change takes place. So example of cooking food, rusting of iron, heating of lead nitrate, shoring of milk, ripening of fruit is also example of the chemical change जो हम पहले से भी जानते हैं. What are rusting of iron is also chemical change? Yes, rusting of iron is also chemical change because new substance iron oxide is formed. There is permanent effect. There is increase in the mass when rust form and energy changes has taken place. So rusting of iron is also example of chemical change. Okay. Chemical change are also known as chemical reactions. All chemical chains are defined the chemical reactions. We know that. So on the basis of heat evolve and heat absorb, chemical reactions can be classified into two categories. First is endothermic reaction and second is exothermic reaction. Exothermic and endothermic. What exothermic reaction? In which determined by accompanied by evolution of heat energy. जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होगा, इवॉल्व होगा, आर नोन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड heat energy release. That is also example of exothermic reaction. Nitrogen, hydrogen are combined to form the ammonia gas. It is the also example of exothermic reaction. Second is endothermic reaction. Endothermic reaction is the just opposite of exothermic reactions because in which absorption of heat energy is involved. इन दिस रिएक्शंस में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू फॉर्म द 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. सो रिक्वायर्ड द एनर्जी तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन द एंडोथर्मिक रिएक्शंस. सो द अमाउंट ऑफ energy produced writing along the reactant, this indicate that heat is absorbed. So heat are always right in the left hand side in the endothermic reaction and right hand side in the exothermic reaction. यहाँ पे कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है. यहाँ पे एंडोथर्मिक होना चाहिए लेकिन यहाँ पे एक्सोथर्मिक हो गया है. तो वो गलतियाँ तो किसी के भी साथ हो सकती है. ओके. नेक्स्ट केमिकल फार्मूला. व्हाट आर केमिकल फार्मूला? We know that chemical formula of substance is the symbolic representation of the actual number of atom present in one molecule of the substance. किसी भी substance के molecules में कितने number of atom है और उसको अगर symbol के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें are known as chemical formula. ओके. तो फार्मूला के फॉर्म में अगर एग्जांपल देखें तो formula of water is H2 means 2 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen is the formula of water. या
chemical formula of sulfuric acid, H2SO4, 2 mole of hydrogen, 1 sulfur and 4 atom of oxygen. So symbolic representation of each atom present in the molecule are known as chemical formula. Okay, chemical equation क्या होता है? What are chemical equations? Chemical equation is the representation of chemical change in term of symbol of formula of the reactant and product is known as chemical equation. Means आपने chemical change देखा, और this chemical change is chemical reaction. These symbolic representation are known as chemical formula, and these symbolic representation in term of reactant and product are known as chemical equations. For example, KMnO4 react with HCl to form the KCl, MnCl2, water and chlorine. It is the chemical equation. Step of writing chemical equation. How to write the chemical equation? तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था. फर्स्ट यू राइट द स्केलेटन इक्वेशन. इन द स्केलेटन इक्वेशन यू यूज द एरो in between the reactant and product, and these arrows are give information about the to form, to give, and reactant always present in the left hand side and product are always present in the right hand side. Okay, ये आपको पहले से भी पता है. And second is balancing of chemical equation. What are requirement of balancing of chemical equations? We know that according to law of conservation of mass, total mass of reactant equal to total mass of product. So in equation, number of atom each element is equal on both side of the equation is known as balanced chemical equation. और इस chemical equation को हम balance by the ट्रायल हार्ड मेथड से करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसके सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसको देख सकते हो और समझ सकते हो. सेकंड, व्हाट आर गिवन इंफॉर्मेशन बाय ए केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशंस गिव इंफॉर्मेशन नेम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैस reactant and product. So chemical equation give the different type of information about the chemical reactions, but some limitation of chemical equation are observed. What are limitation of chemical equation? First is it does not mention the state of substance. ये substance के state को नहीं बता पाता है, ये solid है कि liquid है कि गैस है, इसलिए इनको अलग से राइट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट HCl, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड के फॉर्म में होता है, HCl एक्वस के फॉर्म में होता है, कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड के फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होता है. तो इन्हें अलग से राइट करना पड़ता है. And second is limitation of chemical equation. This reaction may not be complete. इन्हें complete करना पड़ता है. अगर complete करेंगे तभी तो balanced chemical equation बनेगा. It does not give any recording the speed of the reaction. It does not explain about the rate of reaction. कि reactant किस speed से एक product में convert हो रहा है, वो चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता. इट डज नॉट गिव द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता. इट इज़ द लिमिटेशन. फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट टू फॉर्म द 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं. सो यू वाचिंग द PDF नोट्स. ओके, नेक्स्ट है सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, एंड दिस एरो आर
indicate the reversible reaction. Means rate of reactant and rate of product are equal. So this type of reaction is known as reversible reaction. For example, iron are hydrolyzed to form the iron oxide and hydrogen gas. So it is the limitation of chemical equation. Okay. Next, how to balancing of simple chemical equation. Because the number of atom of each element should remain same before and after the reaction. So balancing of simple chemical reactions by heat and trial method. हीट एंड ट्रायल मेथड्स भी मैंने आपको बताया भी था, आपको पहले से पता भी होगा कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय द हीट एंड ट्रायल आर गिवन द स्टेप बाय स्टेप इन द पीडीएफ नोट्स. ओके. And very important topic in this chapter, type of reactions. We know that, and before we learn about the on the basis of evolution and absorption of heat energy into chemical reaction classified into two category. First is exo and endothermic reaction. But on this, chemical reaction are classified basis of formation of reactant and product molecules. Suppose two or more substances combine to form the single molecules, single new substance are known as combination reaction. And this also known as synthesis reaction. दोनों same. Suppose that combination of two elements form a compound, as like hydrogen, oxygen to form the water molecules. Combination of reaction involving element and कंपाउंड. कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों कंबाइंड हो रहे हैं. क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ओके. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू कंपाउंड एज लाइक अमोनिया, HCl टू फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड. सो इट इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ओके. नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज decomposition reaction. Decomposition reaction just opposite of combination reaction, because in this reaction compound break down into more simple substance, but by the application of heat, electricity and light. So on the application of heat, electricity, light, decomposition reaction further classified into three categories. First is thermal, second is electrolytic, third is photolysis. When substance decompose due to heat, it is called thermal. When decomposition due to electricity, it is called electrolytic. When the decomposition due to light, it is called photolysis. जो आपने कभी किसी ने पूछा भी था, बहुत आसान है, आप इक्वेशन देकर भी बता सकते हो. Some example are given in the PDF notes. Mercuric oxide decomposed into mercury and oxygen due to provide heat. So it is the example of thermal decomposition reaction. Copper nitrate are decomposed into copper oxide, nitrogen dioxide, oxygen dioxide. In the presence of heat, it is example of thermal decomposition. When the water are decomposed into hydrogen and oxygen, in the presence of current, it is called electrolytic decomposition. आर गिवन सारे एग्जाम्पल हैं, अब अपने साइड बुक में भी देख सकते हो. एंड नेक्स्ट, chemical reaction are classified on the basis of activity series. What activity series? Those series in which arranged in the order of chemical reactivity are known as activity series. कुछ मेटल होते हैं इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, कुछ मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है. उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन को बनाते हैं. उस बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस आर classified into two category. First is substitution या single displacement reaction, and second is double displacement reaction. What a single displacement या substitution reaction? In which atom of one element replace to another element from the molecules of a compound.
इसमें देखो आयरन एंड कॉपर सल्फेट, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया, बनाया आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो आयरन एक ही एलिमेंट को रिप्लेस किया, इसलिए इट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, suppose its second example, potassium iodide react with chlorine to form the KCl and iodine. It means potassium iodide and chlorine, तो chlorine are substitute या replaced I or react with potassium to form the KCl and iodine are separate out, वो बाहर निकल गया। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अगर वन एटम ऑफ एलिमेंट का रिप्लेसमेंट होगा, इट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड सेकंड केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी सीरीज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म द टू डिफरेंट कंपाउंड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। अगर एक्सचेंज ऑफ आयन दोनों कंपाउंड के बीच में होता हो, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या मेटाथेसिस। ओके, बहुत से एग्जांपल हैं, देखो सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म द सोडियम नाइट्रेट एंड AgCl। सोडियम ने सिल्वर को रिप्लेस किया, सिल्वर ने सोडियम को रिप्लेस किया, इसलिए सोडियम ने नाइट्रेट के साथ सोडियम नाइट्रेट और Cl Ag के साथ क्या बनाते हैं, AgCl का फॉर्मेशन करते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट के आधार पे भी हम फिर इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड सेकंड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो प्रेसिपिटेशन इज द दो सबस्टांस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो इनसॉल्युबल सबस्टांस होते हैं, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और जिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता हो, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पे गिवन है, जैसे इसके एग्जांपल भी यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया हुआ था। जैसे मान लो जिंक सल्फेट है रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड, तो जिंक बेरियम को रिप्लेस किया और क्लोरीन के साथ Cl2 बनाया, और बेरियम जिंक को रिप्लेस किया, बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट बनाया। चूँकि बेरियम सल्फेट आर इनसॉल्युबल सबस्टांस टू फॉर्म द वाइट इन कलर, सो इट इज द प्रेसिपिटेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, second is neutralization reaction. Neutralization reaction means when acid or base are combined to form the acid, salt and water are known as neutralization reaction. So the NaOH react with HCl, तो OH मिलकर क्या बना है, वाटर, और सोडियम और Cl मिलकर क्या बना है, सोडियम क्लोराइड। So this type of double displacement which form the salt and water are known as neutralization double displacement reactions. It is a very important term, oxidation and reduction. Oxidation is the reaction in which addition of oxygen and removal of hydrogen, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से कंबाइंड हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, इट मीन्स मैग्नीशियम और ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो हाइड्रोजन आयोडाइड, दे आर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, इस आयोडीन से बाहर निकल गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। इसी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है कि इन विच ऑक्सीजन आर रिमूव एंड हाइड्रोजन इज एडेड। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म द कॉपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। जो कॉपर के जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। अब सेकंड आता है कि व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। द रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली एट ए सेम टाइम। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता हो, इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे पहले ही आपने एग्जांपल देखा होगा इसके पहले ऊपर वाला, ये भी हमारा क्या है, एक तरीके से
ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा मैग्नीशियम है, ऑक्सीडाइज हुआ और सल्फ्यूरिक में क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ईजी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सोचते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करे, सेल्फ क्या हो, रिड्यूस हो, मीन्स द सबस्टेंस दैट ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल सा फंडा ये है कि जिस रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको उल्टा कर दो, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, और जिस रिएक्शन में रिडक्शन होता है उसको वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। सेकंड डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है कि ऑक्सीडेशन का दिया है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। तो ऑक्सीजन के अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी एडिशन होगा तो भी वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मीन्स अगर हाइड्रोजन प्लस के अकॉर्डिंग के अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का भी एडिशन होगा, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, वाटर ऑक्सीडेशन, तो जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड दोज प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज रिडक्शन। तो हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के बेसिस पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में जाना। एंड लास्ट टॉपिक, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन everyday life. The first is corrosion. What are corrosion? Simple way कि the oxidation of metal in the influence of moistures, air, acid are known as corrosion. मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाना ही क्या होता है, corrosion प्रोसेस होता है। If metal or iron, it is called rusting of iron. Means when iron article are shining but get coated with the reddish brown powder when left for some time because they are affected by the substance like moistures, air, acid. So this process is commonly known as rusting of iron. So how to prevent the corrosion या rusting of iron? Because this corrosion, this rusting of iron are very harmful because they cause structural weakness and their properties are reduced of the metal. तो इस कोरिजन को प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो लेयर गैल्वेनाइजेशन, हम लोग जिंक का लेयर लगाते हैं, पेंट करते हैं ताकि इनका कनेक्शन ऑक्सीजन और वाटर से ना हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको हम प्रिवेंट करते हैं और इसकी भी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे दिया भी है कि कॉपर सिल्वर क्विकली एक्वायर इन थिन ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग इन द मॉइस्चर एयर। सिल्वर भी ब्लैक हो जाता है क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइंड होकर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, उसी को तो रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, जो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज रेंसिडिटी। अगर वही ऑक्सीडेशन मेटल के को छोड़कर अगर फूड मटेरियल में हो जाए तो इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल विच कंटेन फैट एंड ऑयल एंड रिलीज अनप्लेजेंट चेंज इन द फ्लेवर एंड कलर आर नोन एज रेंसिडिटी। और इस रेंसिडिटी के कारण क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया और चीज़ें जनरेट होने लगती हैं, तो इनको भी प्रिवेंट किया जाता है। सम सबस्टेंस विच रिड्यूस द rate of oxidation in the food materials are known as एंटीऑक्सीडेंट। इस एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करके भी हम रेंसिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, BHT ब्यूटायरेट हाइड्रोक्सी टॉलुइन, BHA ब्यूटायरेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, विटामिन E, विटामिन C, स्पाइस, रोजामेरी, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स को डिक्रीज करते हैं। एंड लास्ट है कि अगर सपोज दैट एक नया टर्म आया है कि पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्रोटेक्ट द रेंसिडिटी, सो दे कंटेन फ्लूइड विद द नाइट्रोजन टू फर्दर एक्सक्लूड ऑक्सीजन,
तो इसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन को फिल करते हैं और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो उसको रेंसिडिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हैं जो हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डू यू अंडरस्टैंड? इट इज़ द समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, एंड एनी डाउट to ask me, and you learn and make notes and to solve the NCERT questions, exercise in text, and necessary to solve 5-year question of these topics. Okay, thank you.